Hello student, I am Sandeep Singh, your SST teacher, and this is your chapter 3rd, Weather and Climate. In this lesson we will learn about weather and climate and also read about that what effect on the human life of weather and climate. So let us start now. Student, here you have seen that there are two kids which are showing out of the window and a boy which show on the window, that is called, oh no, what terrible weather, we will not be able to play football today as well as. The boys which are named is Arun said that it is a terrible weather. He word used weather, so it is not able to. He is not able to play football today. So, and other kid which is name is, I have never seen much rain in my life this much because climate change. Okay, so the Reena Vidya is use the word climate change. So here Arun used the word weather and Vidya used the word climate. Do you two words mean that same thing or different? They are used to weather and climate. Weather is a state or condition of atmosphere at a place over short period of time. It can change every few hours in course of days. Weather is a short period of time that change every period of time. It can change a few hours. A place that is experiencing violent storm right now might have calm sunny weather just few hours ago. Okay, weather can be described as hot, cold, windy, humid and cloudy and rainy. At a place the weather is maybe cloudy, rainy and windy, so it is called weather because it is change rapidly at a time. Climate on other hand, it is average weather condition over a large area. Here is two terms, that is a large area and longer period of time over 30 years. Okay, in weather is a short period of time. Okay, ध्यान दीजिए, यहाँ पर वेदर में शॉर्ट पीरियड टाइम कहा गया है और एक छोटे से जगह के लिए, ओके, प्लेस के लिए, जबकि एक एरिया और ये लगभग 30 सालों तक चेंज नहीं होता है, तो इसको हम क्लाइमेट यानी जलवायु बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट नॉर्थ इंडिया हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट with hot summer and cold winter, or that coastal plains India have equable climate with no marked seasonal change. यानी कि कोस्टल एरिया में जो है चेंज नहीं होता है, जबकि बाकी एरिया में चेंज होता रहता है, वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट हम बोलते हैं. ओके, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट. व्हाट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट? Climate is influenced and controlled by the certain factors. Main among these are latitudes, distance from the equator, altitude, humidity, precipitation and wind. These are the factors which influence the climate. First we look at the latitudes. Latitude or distance from equator is one of the most important factor affecting the climate of a place. The further goes on equator, colder it is. Therefore, the place near higher latitude and rules higher latitude, the colder climate a place. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इक्वेटर से जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे वहाँ पर कोल्ड होता चला जाएगा, नॉर्थ और साउथ में जाएंगे तो कोल्ड होता चला जाएगा. बिकॉज क्योंकि ये जो है यहाँ पर सूर्य की रोशनी नॉर्थ पोल पर नहीं पड़ती है, इस कारण से ये एरिया कोल्ड हो जाएगा. लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर पर रहेंगे वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. एल्टीट्यूड
Altitude or height of place over sea level, temperature decrease with एल्टीट्यूड। यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्टीट्यूड जो होता है, इस तरह से अगर हम समझें तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर हवाओं का लेयर की वजह से टेम्परेचर अर्थ पर जो आता है तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जबकि ऊपर जाने पर गर्मी कम हो जाती है, हवा कम गर्म होती है। तो इस कारण से एल्टीट्यूड भी इफेक्ट डालता है। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम सी, प्लेसेस लोकेटेड नियर सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट दैट they are neither too hot nor too summer nor too cold winter. On other hand, places located in the interior continents have extreme, यानी जहाँ पर हम देखेंगे कि अगर सी एरिया से दूर हम जाते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर कोल्ड होगा टेम्परेचर, लेकिन जब से हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर मॉडरेट होगा और यहाँ पर वार्म हो जाएगा। जैसे जैसे दूर हम जाएंगे तो वहाँ से, इसी को हम डिस्टेंस फ्रॉम सी बोलते हैं। दिस हैपन बिकॉज ओशन सीज टेक लॉन्गर टू हीट अप कूल डाउन इन लैंड। एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग समर कूल वाइंड ब्लो फ्रॉम द सी कूलिंग प्लेसेस अलॉन्ग द कोस्ट। इसी कारण से जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहते हैं, जबकि दूर वाले जगह पर टेम्परेचर हाई रहते हैं। ओके, and during winter warm wind blow from sea warming places along the coast, thus the places coast are colder summer and warmer in winter places located in the same latitude. For example, Edinburgh, Scotland and Moscow in Russia lies along similar latitude, but Edinburgh has milder winter because it lies on the coast, unlike Moscow which serves winter because लाइज इन इनलैंड। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में बताया गया कि एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड में और मॉस्को रसिया में दोनों एक ही लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन एडिनबर्ग में टेम्परेचर माइल्ड होता है बिकॉज कि जो सी वाइंड्स होते हैं वो इस एरिया को गर्म कर देते हैं। वार्म लैंड वाइंड्स होते हैं जो इस एरिया को, एडिनबर्ग को गर्म कर देते हैं, जबकि मॉस्को जो है वहाँ पर इस एरिया को ठंडा कर देते हैं, जिस कारण से वहाँ पर ठंडक पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है, जबकि एडिनबर्ग में मौसम साफ रहता है। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। एटमॉस्फेयर कंटेन्स वाटर वेपर्स, द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यानी जो हम अगर देखें वाटर की प्रेजेंस जो होता है वेपर्स में, उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और व्हेन द ह्यूमिडिटी इज़ हाई वी फील स्टिकी एंड हॉट एंड स्वेट अ लॉट। यानी जब हम ह्यूमिडिटी को महसूस करते हैं तो हमारे से शरीर से पसीना ज़्यादा आता है और ये चिपचिपा हो जाता है। व्हेन ह्यूमिडिटी इज़ लो आवर स्किन फील ड्राई। लेकिन जब ह्यूमिडिटी समाप्त हो जाती है तो क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाती है, हमारे लिप्स यानी होठ जो होते हैं वो फटने शुरू हो जाते हैं। ओके, प्लेसेस नियर द सी एंड other water bodies have high humidity while places far away from its low humidity। यानी जहाँ पर हम समुद्र से अगर दूर जाते हैं तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा कम होती है, और जैसे जैसे हम नज़दीक रहते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है। प्लेसेस विथ हायर ह्यूमिडिटी एक्सपीरियंस मोर प्रेसिपिटेशन। जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। सो hot and humid places like those lying along equator have rainy heavy rain। यानी इक्वेटर के आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जबकि डेजर्ट रीजन में बहुत कम बारिश होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, देयरफॉर रिसीव ऑलमोस्ट नो रेनफॉल। ओके, सो नेक्स्ट इज वाइंड। Air is motion is called wind. When air is blow, it is called wind. Warm wind that blow in from sea are full moisture, and wind has leading the moisture from the sea. They bring rainfall to the coastal areas. Wind that blows from the desert are hot and dries. In desert area, when wind blow, it became hot and dry. These rain temperature of the land over the blow. When these winds are blow from the desert area, and this is very hot because
the humidity of the air is ended with the high temperature, and the polar region cause temperature fall sharply, and which winds blow from the polar region, they had latent moisture and they became cold, and when they blow from the colder area to warmer area, and these areas are became to cold area due to the presence of cold. Okay, so heat zones of the earth, as we have already seen, not a part of the earth receive same amount of sunlight from sun. जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे अर्थ पर सन नहीं प्राप्त होता है, तो इस कारण से एज ए रिजल्ट शेप स्फेरिकल ऑफ अर्थ टिल्टेड एक्सिस। इसका रीजन क्या है कि जो अर्थ है हमारे वो टिल्टेड, वो सीधा नहीं बल्कि ऐसे झुका होती है। ओके, some parts receive more heat and some receive less. Based on the amount of heat received, the earth divided into 3 heat zone: torrid zone, temperate zone and frigid zone. इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन, जो सीधा नहीं होता है, जो यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो होता है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट होता है टेम्परेट जोन, यानी गर्मी थोड़ी सी यहाँ पर तिरछी पड़ती है, और ये आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है। एंड फ्रिजिड जोन, दीज आर लाइज ऑन द नॉर्दर्न पोल ऑन साउदर्न पोल। ओके, लेट अस लुक एट द समिंग अप। Weather is state condition of atmosphere at a place over a short period of time. It is can change every few hours in a course of day. जैसा कि हम शुरुआत में पढ़ा था कि वेदर यानी मौसम क्या होता है कि एक ऐसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है जो एक जगह पर, एक छोटे से जगह पर बहुत कम समय में वो बदल जाता है। So definition is weather is the state or condition atmosphere at a place over a short period of time. It can change every few hours in the course of day. On other hand, the climate is some total weather condition over large area across period over 30 years. यानी वहीं पर हम देखें तो क्लाइमेट जो है इसका ठीक उल्टा होता है। क्लाइमेट जो है किसी जगह पर पूरे वेदर कंडीशन का एक बहुत बड़ा एरिया जो है लगभग 30 सालों तक एक ही मौसम बना रहता है, या तो गर्म होता है या वो ठंडा होता है। तो उस जगह पर जो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट आर लैटिट्यूड्स, हाइट अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन एंड वाइंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? सो क्लाइमेट, लैटिट्यूड, height above the sea, distance from sea, humidity and precipitation and winds. Okay, temperature decreases as we move away from equator toward the pole. जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। बिकॉज क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड होती है, तो सन के जो लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होता है, इस कारण से पोलर रीजन पर कम होता है, यहाँ पर कोल्ड होते हैं, और जबकि इक्वेटर रीजन पर क्या होता है, हॉट टेम्परेचर होता है। ओके, टेम्परेचर फॉल विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड, देयरफॉर प्लेसेज एट हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस लोअर टेम्परेचर दैट प्लेस अ लोअर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर फॉल होता है। ओके, बिकॉज जैसे जैसे हम क्योंकि हवा का जो लेयर होता है, सबसे नीचे वाली हवा ज़्यादा गर्म होती है और उससे वाली गर्म जो होती है माइल्ड होती है, और ऐसे ऐसे वो कोल्ड होती चली जाती है। और जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो पर 100 सेंटीमीटर पर जो है 30 से डिग्री टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम होता जाता है। ऐसे 100 मीटर पर जाने के बाद जो है टेम्परेचर कम होता है। इसी कारण से एल्टीट्यूड भी एक अमाउंट को गर्मी को कम करता है। ओके,
The amount of humidity atmosphere can influence the climate of a place. The greater humidity, more rainfall. यानी किसी जगह पर ह्यूमिडिटी जो है उस जगह को इन्फ्लुएंस करती है. अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है तो वो रेनफॉल भी करती है. Wind can raise and lower temperature of a place and increase or decrease its humidity. हवा के बहाव के द्वारा अगर टेम्परेचर लो है तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर डाउन कर देती है, जबकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है तो वहाँ पर बरसात भी करती है. द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन. जैसा कि हमने पिक्चर में देखा था कि हीट जोन कौन कौन होते हैं. टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. ओके, टॉरिड जोन कौन कौन से हैं. टॉरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन होता है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल के बीच में जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन. ओके, टेम्परेट जोन. और जो रीजन आर्कटिक सर्किल यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है उसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं. ओके, एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स. एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ एयर इज अराउंड द सन. यानी जो हवा का लेयर होता है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. प्रिसिपिटेशन, वाटर फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड टूवर्ड द ग्राउंड. यानी बादल के द्वारा जो पानी नीचे गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन यानी रेन बोलते हैं. टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. यानी टेम्परेचर का जो हम डिग्री में नापते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर्स इन फॉर्म गैस. यानी जब गैस में बदल जाता है, भाप बदल जाता है उसको वाटर वेपर. सी लेवल, द लेवल सी, जियोग्राफी हाइट ऑफ एन मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल. यानी जियोग्राफी में जो हम लैंड की हाइट नापते हैं वो सी लेवल से नापते हैं. मॉडरेट, नाइदर टू हॉट नॉट टू लिटिल. यानी जहाँ ना तो गर्मी पड़ती हो ना ही ज़्यादा ठंडक होता है उसको मॉडरेट. टॉरिड यानी वेरी हॉट. टेम्परेचर माइल्ड, टेम्परेट माइल्ड. फ्रिजिड वेरी कोल्ड. क्लाइमेट चेंज इन द क्लाइमेट अराउंड द वर्ल्ड रिजल्ट पोल्यूशन एंड अदर एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. इज द स्टेट्स आर कंडीशन एटमॉस्फेयर अ प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पर ध्यान दीजिए, सो ए प्लेस है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, वेदर. ओके, क्या होगा, वेदर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ ए एटमॉस्फेयर ओवर ए लार्ज एरिया. यहाँ पर आप देखेंगे कि लार्ज एरिया और पीरियड ऑफ 30 ईयर यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लाइमेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेस नियर द सी एंड अदर वाटर बॉडीज है. जहाँ पर नज़दीक में होगा तो वहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ, क्या होगा, फॉल. ओके, सॉरी यहाँ पर होगा 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न. तो यहाँ पर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में टॉरिड जोन. ओके, टॉरिड जोन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेज ट्रू फॉल्स. न्यू दिल्ली हैज इक्वेबल क्लाइमेट, सो इट इज अ false answer because it is lies in the torrid zone. Southern India does not experience snowfall because it lies in torrid zone. It is also false because southern India has not a high altitude, so it is not experience snowfall. Next question is, places that lie sea usually experience high humidity. It is true answer because near the sea, sorry, it is a true answer because near the sea places it is high humidity. People travel to hell during winter. It is false answer because during summer people visit to the hill stations from escape of the heating in northern plains.
the polar region are cold because they receive direct rays of the sun. It is also false answer because polar region not receive direct rays of the sun. It is slightly, so it is cold. We need warm clothes Mumbai December. It is also false because Mumbai has equable climate. So answer the following question. Write two differences between weather and climate. So weather is a condition of a place over a long period of time, and climate is a condition of an area over a long period of time, over 30 years. How does latitude affect the climate place? So climate, altitude, latitude, इन वीडियो हम आपका ये क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ के बना करके आपको भेज देंगे. आप पीडीएफ को देख लीजिएगा और उसको आप लोग याद करेंगे. ये आपका होमवर्क भी रहेगा. इस वीडियो में बस इतना ही. धन्यवाद.